ਇਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਨਿਰਭਉ ਨਿਰਵੈਰ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਅਜੂਨੀ ਸੈਭੰ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ ਮਿਟੀ ਧੁੰਦ ਜਗ ਚਾਨਣ ਹੋਆ। ਜਿਉ ਕਰ ਸੂਰਜ ਨਿਕਲਿਆ ਤਾਰੇ ਛਪੇ ਅੰਧੇਰ ਪਲੋਆ। ਸਿੰਘ ਬੁਕੇ ਮਿਰਗਾਵਲੀ ਪੰਨੀ ਜਾਏ ਨ ਧੀਰ ਧਰੋਆ। ਜਿੱਥੇ ਬਾਬਾ ਪੈਰ ਧਰੇ ਪੂਜਾ ਆਸਨ ਥਾਪਨ ਸੋਆ। ਸਿਧੇ ਆਸਨ ਇਸ ਜਗਤ ਦੇ ਨਾਨਕ ਆਦ ਮਤੇ ਜੇ ਕੋਆ। ਕਰ ਕਰੇ ਅੰਦਰ ਧਰਮਸਾਲ ਹੋਵੇ ਕੀਰਤਨ ਸਦਾ ਵਿਸੋਆ। ਬਾਬੇ ਤਾਰੇ ਚਾਰ ਚੱਕ ਨੌ ਖੰਡ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਸੱਚਾ ਢੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗੁਰਮੁਖ ਕਲ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋਆ। ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਕਿਛ ਕਰਮ ਨਾ ਜਾਣਾ ਸਾਰ ਨਾ ਜਾਣਾ ਤੇਰੀ। ਸਭ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਤਿਗੁਰ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਕਲ ਰਾਖੀ ਮੇਰੀ। ਜੁਗੋ ਜੁਗ ਅਟਲ। ਧੰਨ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਅਜ਼ੀਮ ਅਪਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਇਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰ ਸਤਸੰਗਤ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਭਾਵੇਂ ਗੁਰੂ ਹਜ਼ੂਰੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਭਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਵਰਚੁਅਲ ਸੋਰਸਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਕੀਰਤਨ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦਾ ਇਹ ਸਬਬ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਾਕਫਿਤ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਆਉਂਦੇ 30 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਗਤ ਜਲੰਦੇ ਨੂੰ ਠਾਰਨਹਾਰ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਆਗਮਨ ਪੁਰਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਸਤਰਾਂ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਉਹ ਮਨਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਬਣਿਆ 551ਵਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਰੀ ਸ਼ਰਧਾ ਅਤੇ ਅਕੀਦਤ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਾ ਸਕੀਏ। ਆਉਂਦੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਸਵੇਰ ਤੋਂ ਪਾਵਨ ਬਾਣੀ ਦੇ ਤੁਰਕੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਅਖੰਡ ਜਾਪ ਪ੍ਰਾਰੰਭ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜੋ ਸਮਾਂ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਫਿਰ 30 ਤਾਰੀਖ ਨੂੰ ਬਣੇਗਾ ਕਥਾ ਵਾਰਤਾ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੋ ਅੱਜ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਗੁਰਪੁਰਬ ਦੀ ਸ਼ਾਮ ਅੱਜ ਸਮਝਦਿਆਂ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਰਿਸ਼ਮਾਂ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਨਵਤਾ ਨੂੰ ਕਲਿਆਣ ਹਿੱਤ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਅਥਾਹ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਡਾ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਜੀ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਓਟ ਆਸਰਾ ਲੈਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਰੋਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਕਿਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੁਝ ਜੀਵਨ ਪ੍ਰਸੰਗ ਬਾਰੇ ਬਾਤ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਜੇ ਹੁਣੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਜਗਤ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪੌੜੀ ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅਖਾਣ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਈਡੀਅਮ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਬਚਨ ਜਿਹਦੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਸੁਣੀਆਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ
सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंद जग चानन होवा, ज्यों कर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा, सिंह बुके मिर्गावली पन्नी जाए न तीर त्रोवा। ਆਪਾਂ इस पौड़ी तो ही बात शुरू करांगे अज। सो आओ मैनू कुछ कहने की इजाजत देनी, नाल ही खाकसार वालों फतेह प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। भाई साहब भाई गुरदास जी, सतगुरु नानक प्रगटिया। गुरु नानक एक कला शरीर नहीं गा, एक विचार है, एक राह है, एक स्कूल है, एक कंप्लीट आइडियोलॉजी है, एक समुची वे ऑफ लाइफ है, एक मनुखी जीवन का वो प्रसंग है जिन्हों जी के मनुख संपूर्ण मनुख बन सकता है, वो गुरु नानक है। भाई साहब भाई गुरदास जी उन्हों की आमद नूं सतगुरु नानक प्रगटिया, प्रगट होने के निमित्त बयान करते हैं। असीं अक्सर गुरु ग्रंथ साहब की विवेचना करते हैं, बाणी की विवेचना करते हैं, इस शब्द को कई रूपों में देखते हैं। जिवें साडे लिटरेचर च भी कहा जाता है कि खालसा अकाल पुरख की फौज, प्रगट्यो खालसा परमात्म की मौज, प्रगट होना। या बाणी चो जो कुछ संदेश पढ़िए तो गुरु बाबा जी बयान करते कि जिवें असीं बीते कल ही रूटीन की कथा च विचार रहे थे कि नस बंजो किल विखो करता करे आया, दूतां दहन भया गोबिंद प्रगटाया। जदों गोबिंद प्रगट हो गया, आमद हो गई उहदी उस रूप दे विच, उदों दूतां दहन भया, जिहड़े वकार सीगे वो जल गए, वो सड़ गए, खत्म हो गए, फना हो गए। हुण एग्जैक्टली इन बिन जे असीं देखीए तो 12 माह की रचना च असीं पढ़ते हैं फलगुण आनंद उपार जना हर सज्जन प्रगटे आए। हुण इहदी व्याख्या ये है, देखो गुरु नानक साहब एक ऐसा स्कूल है, एक ऐसी स्पिरिचुअल साइड तो कायनात दे हुक्म दे विच करतार दी एक ऐसी नवाजिश आ जिहड़ी रियलिटी दे विच असलीयत च लामसाल है। वी कैन नॉट कंपेयर, वी कैन नॉट गिव एनी एग्जाम्पल इन फ्रंट ऑफ गुरु नानक साहब। एक्चुअली उन्हां दी जिहड़ी आमद हुंदी है, जिहड़ा उन्हां दा जीवन दे उत्ते इस धरती दे उत्ते जीवन प्रारंभ हुंदा है, क्योंकि उहदे नाल हर चीज़ बदलती है, हर चीज़ नूं एक नवां रंग मिलता है। अज जिहड़ी स्पिरिचुअलिटी किते ना किते लोग इंजॉय कर रहे हैं, लोग बाण रहे हैं, ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਵੇਰਵਾ ਜੇ ਈਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਕੱਲ ਨੂੰ ਓਨੈਸਟ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੋਕ ਦੇਖਣਗੇ ਤੇ ਜਿਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਤਸੱਵੁਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਉਹੀ ਹੈ, ਉਹੀ ਰਾਮਾਂ ਨੇ, ਉਹੀ ਟਰੈਕ ਆ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਰੀਬਨ 60,000 ਮੀਲ ਦਾ ਪੈਦਲ ਸਫ਼ਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਦੇਣ। ਖੈਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਪਾਉਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਐਮਫਸਾਈਜ਼ ਰੱਖਾਂ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਗਟਿਆ। गुरु साहब दे आउण तो पहला भाई गुरदास जी बयान करते धरती अरदास है तो धरती तरले कर रही है, तो उस अरदास नूं फल गुरु नानक साहब के रूप में पैंदा है, प्रगट होना। इसदी मिसाल मैं 2 रूपों में देना। पहली गल तो यह है गुरु नानक साहब की आमद तो पहला, क्योंकि 15वीं सदी है, 1469 1469, इसे धरती इस फिजान दे विच, पंजाब की फिजान दे विच भगत फरीद जी 11वीं सदी के चो आमद लेंदे ने। उन्हां दी बाणी असीं पढ़दे हां। वो खिता, वो धरती जिथे लोग रब ते रब दी होंद नूं मंदिरां मसीतां च कैद करके ते अजीब किस्म दे एक अडंबर ते पखंड च फसे हुए सी। उत्थे गुरु नानक साहब दी आमद दे करीबन 400 साल पहला ये बात हो रही है, ये बात आ रही है उस धरती के उत्ते कि वो बंदे आ चीज चेते रखी, एक फिक्का ना गालाए सबना मैं सच्चा धनी। किसी नूं एक फिक्का बोल भी ना बोली, क्योंकि जिहड़ा रब दा घर आ वो मनुख दे हिरदे दा घर आ। मनुख दा अंदर असल दे च रब दा अंदर रब दी असल उदी असल रिहायश आ, रिहायश गाह आ। हुण जिहड़ी ये बात आ, ये गुरु नानक साहब की आमद तो पहला शुरू हो रही है। इत्थे इस तरह ही है जिवें कह लो
कि कोई तुसी फल वाला बूटा लगाउंदे हो तो उस बूटे की प्रतिपालना करते हो। गुरु नानक साहब की आमद तो पहला इस खिते दे विच भगत आ रहे हैं, इस खिते की तैयारी हो रही है सारी की सारी वक्रे वक्रे रूपों दे विच। गुरु नानक साहब की आमद तो पहला इत्थे जो भगतां दे रंग बिखरते हैं, इनू इस तरह जानो कि दानिशमंदां ने बचन कहे कि जिवें कोई फुल खिड़न लगता आ तो उस फुल दियां पंखुड़ियां 2 4 10 15 पहला निकलदियां ने। उस तो बाद जिहड़ा दा बेस आ मकरंद, जिहड़ा उस फुल दा एक्चुअल लैवल ते जिहदे विच वो नैक्टर आ, वो फ्रैगरेंस आ, सीड्स ने, सारा कुछ जिहदे विच समाया होया। पंखड़ियां ते कुछ नहीं, पंखड़ियां ते सपोर्ट करदियां ने फुल नूं, पर फुल दी आभा नूं मंडित करदियां, उहदी ग्लोरी नूं ग्लोरीफाई करदियां ने, खुशबू नूं होर ज़्यादा फैलांदियां ने। पर वो पंखड़ियां पहला निकलनियां शुरू हो जांदियां ने, अजे फुल नहीं आया। जदों एक लैवल आउंदा पंखड़ियां कुछ खिलदियां ने, फिर उस फुल का रूप दिसना शुरू होंदा, वो प्रगट होंदा है। गुरु नानक साहब जी की आमद तो पहला भगत आ रहे हैं सारे उस रूप दे विच, ते उस समय दे विच फिर वक्त अपनी चाले बतीत हो रहा आ, तो गुरु नानक साहब वो उजागर होंदे ने एक रूप। दूसरा मिसाल देवां, जिवें बिनती कर रहा सी, कोई फल वाला बिरख लगाया तो उस बिरख नूं जिवें जिवें समा अगे बतीत हुंदा आ, वो बिरख वड्डा हुंदा आ, उसनूं बहारां दे दिनां दे विच आए साल फुੱਲ पैंदे ने, आए साल पत्त निकलते हैं, नवीं सलरां निकलदियां ने, नवें सफुट फुटते हैं उसनूं, मतलब पत्ते टाहणियां शाखावां ये सब निकलदियां इस रूप दे विच। वेखण वाला उन्होंने माणदा भी दरख्त वड्डा हो रहा, पर दरख्त फल वाला। कोई कहंदा फल नहीं, अजे सिर्फ पत्ते ने, अजे सिर्फ टाहणियां ने, अजे शाखावां ने, अजे दा कद वध रहा है। एक समा ऐसा आउंदा है जदों उन्हां टाहणियां उन्हां शाखावां उन्हां दे विचों पत्ते कल्ले नहीं निकलते, उहदे नाल छोटा छोटा बूर निकलदा आ। वो बूर वक्त पा के फुल्लां विच कन्वर्ट हुंदा आ, उही फुल वक्त पा के फल विच कन्वर्ट हुंदे ने। कोई बंदा जिहड़ा उस बूटे नूं पिछले 2 3 4 साल तो विटनेस कर रहा सीगा, इस वारी किते वो बाहर गया सी, बाहरों आया कोई महीने कोई 2 महीने बाद आके की देखदा आ, टाहणी ते उही है, ब्रांच ते उही है, पर इस ब्रांच दे नाल की देख रहा वां, एडे एडे मोटे एप्पल लटक रहे ने, प्लम लटक रहे ने, मैंगो जिहड़े ने लटक रहे ने। ये कित्थों आए? वेयर डू दे कम हेयर? ये किसी ने बाहरों चिपकाए ने? ना भाई, इन्हां शाखावां दे विचों ही निकले ने। पर पहला नहीं सीगे, पर पहला इस करके नहीं सीगा क्योंकि रुत नहीं सी आई, बहार नहीं सी आई, वक्त नहीं सी आया, समा नहीं सी आया, कुदरत नूं ये गवारा नहीं सी। कुदरत ने इसे समय दे विच इस फल दी, इस मठास दी, इस फ्रूट दी आमद लियाउणी सीगी। इनू कहो प्रगट होना यह है। ये धरती लंबे समय तो तैयारी कर रही सी, उस तैयारी नूं फल पैंदा गुरु नानक साहब दी होंद दे नाल। सतगुरु नानक प्रगटिया, वो प्रगट हुंदा है। फिर इस तरह प्रगट हुंदा है, मिट्टी धुंध जग चानण होवा। मिट्टी धुंध हुण इहदे च यह है, तुसीं जिन्नी हिस्टरी पढ़ोगे, हिस्टरी दी बुक्स पढ़ोगे, गुरु नानक साहब दे आमद दे समय दे तुहानूं चित्र सिरजे हुए मिलणगे। इवन भाई गुरदास जी दी रचनावां चों जे किते आप पढ़ोगे तो कहिंदे ने कि सच किनारे रह गया खै मरदे बामण मुलाणे। हालत यह है कि 2 मजहब, एक हिंद का मजहब सनातनी मत, दूसरा कतेबी मत इस्लाम मत, ये लड़ रहे हैं, झगड़ा हो रहा लगातार लगातार। उस रूप दे विच जिहड़ा है मुफादियत डे बाई डे वधदी तुरी लगी जा रही है। सो ये चीज़ां ने, फिर गल्लां यही नहीं, पखंड अडंबर हर लैवल ते चीज़ जिहड़ी है उस रूप दे विच है। तो फिर यह भी है, कई बार अज भी लोग कई बार गल्लां कर देंगे कि गुरु नानक साहब तो पहला भी तो धर्म सीगा ही, गुरु नानक साहब ने नवीं गल किहड़ी कीती? गुरु नानक साहब तो पहला भी बड़े फलसफे सी, बड़ियां रावां सीगियां। मैनूं याद आ, मैं काफ़ी साल पहला सिंगापुर दे विच गुरु अर्जन साहब के गुरपुरब के उत्ते बात पा रहा सीगा, तो उत्ते बात पाउंदे मैं गुरु हरगोबिंद साहब जी की तेग चकनी जिहड़ा उन्हां दा मेरी पी का कॉन्सैप्ट है, उहदी बात हुई। एक सज्जन मेरे को आए, कहते कि भारती खिते दे विच
जंगां तो पहलां भी हुंदियां रहियां, जंगां कोई नवीं गल थोड़ा कोई। हुण जिहड़ी ये बात उसने कही तो ਉਹਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਾਇਨਾ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਟਸ ਜਸਟ ਰੂਟੀਨ, ਨਥਿੰਗ ਐਲਸ, ਜਿਵੇਂ ਪਿੱਛੋਂ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਂਦ ਹੈ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸੂਰਜ ਦੇ ਵੱਧ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਆ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਹਨੇਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਅੱਖ ਨਾਲ ਹਨੇਰਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਸੇ ਦੇਖੋਗੇ ਚਿੱਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਦੀਵਾ ਬਾਲਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ, ਹੱਥ ਪਸਾਰਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦਾ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਦੋਂ ਫੌਗ ਦੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਐਕਸੀਡੈਂਟਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਦਿੱਕਤ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਭਈ ਚਾਨਣ ਤੇ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਧੁੰਦ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਇਹਨੂੰ ਚਾਕ ਕਰਨਾ ਦੀਵਿਆਂ ਦੀ ਵਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਲਾਈਟਸ ਦੇ ਵਸ ਦੀ ਬਾਤ ਨਹੀਂ। ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਟ ਟਿਊਬ ਲਾਈਟਸ ਆ, ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਆਮਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਜਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਮੈਂ 2-4 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੇ ਅੱਜ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਵਾਂ, ਵੈਟੀਕਨ ਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬਗਦਾਦ ਫੇਰੀ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਯੂਰਪ ਦੀ ਫੇਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਪਰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੁਝ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨਸ ਨੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਸਕਾਲਰਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੈਟੀਕਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਪਵਿੱਤਰ ਹੋਲੀ ਸਿਟੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਹੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਦਾ ਵਸਾ ਦਿੱਤਾ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇੱਥੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਈਸਟਰਨ ਸੇਂਟਲੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਆਈ, ਹਿਜ਼ ਨੇਮ ਵਾਜ਼ ਨਾਨਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਫਰੈਂਚ ਲਿਖਦੇ। ਅਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਨਵੀਂ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬੜੀਆਂ ਪੂਜਾ ਅਰਚਨਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਚਰਚ ਦੀਆਂ ਟੱਲੀਆਂ ਖੜਕਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵੀ ਆਰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਵੈਰੀ ਬਲੈਸਡ ਪੀਪਲ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਪਰ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕੁਝ ਅਕਲ ਅਤੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਾਹਰ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇਖੋ ਨਿਕਲ ਕੇ, ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਸੇਗਾ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਵੇਚਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸਾਜੋ ਸਮਾਨ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਜਿਵੇਂ ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ ਮਾਸ ਵਿਕਦਾ ਆ, ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਵਿਕ ਰਹੇ ਨੇ? ਮਨੁੱਖ, ਸਲੇਵਰੀ। ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕਹੀ ਕਿ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦਾ ਵਿਕਣਾ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਅਭਿਸ਼ਾਪ ਹੈ ਬੜਾ ਵੱਡਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਧਰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਆ, ਧਾਰਮਿਕ ਹੁੰਦਿਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸੈਲਵੇਸ਼ਨ ਦੀ ਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੋੜੀ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਲਿਬਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਲੈਵਲ 'ਤੇ, ਮਤਲਬ ਜ਼ਹਿਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਪਾਕ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬਾਹਰ ਦੀ ਹਰ ਗੁਲਾਮੀ ਉਹਨੇ ਤੋੜੀ। ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਨੁੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਸ ਸੀਗੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਧੁੰਦ ਆ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਨੇਰਾ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਉਦੋਂ ਹੋਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਸਮਥਿੰਗ ਇਨਹਿਊਮਨ ਹੈਪਨਿੰਗ ਓਵਰ ਹੇਅਰ, ਗੈਰ ਮਨੁੱਖੀ ਵਰਤਾਰਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਇੱਕ ਮੈਂ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ, ਇਹ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਧੁੰਦ, ਜਿਸ ਧੁੰਦ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਰਿਅਲਾਈਜ਼ ਕਰਵਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਰੰਗ ਦੇਖੋ, ਭਾਰਤੀ ਖਿੱਤਾ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਖਿੱਤਾ ਆ, 68 ਤੀਰਥ ਉੱਥੇ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਨਹਾਉਣ ਦਾ ਕਰਮ ਹੈ। ਜੋ ਪਾਣੀ 'ਚ ਨਹਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਅੱਜ ਵੀ, ਆਪ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਂਗਾ ਮੈਂ, ਪਰ ਇਸ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਦੇਖੋਗੇ ਕਿ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ, ਕਿਉਂਕਿ ਡੇ ਬਾਈ ਡੇ ਮੈਂਟਲ ਹੈਲਥ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਦੀ ਬੰਦਾ ਗੁਰਬਤ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਗਰੀਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ I don't have enough resources, that's why I'm not happy. But one day that individual, suppose that individual have enough resources, ਉਹਦੇ ਕੋਲ enough resources ਆ ਗਏ ਨੇ, ਜੌਬ ਵੀ ਆ ਗਈ, ਘਰ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਕੁਝ ਸਰਮਾਇਆ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੇਰਸੀ ਤੇ ਬੇਰੰਗੀ ਹੋ ਗਈ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਨਹੀਂ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਮਿਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ 'ਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਮ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਵੈਸਟਰਨ ਵਰਲਡ ਜਿਹਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲੈ ਲਈ ਵੈਸਟਰਨਾਈਜ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਡਿਗਰੀਆਂ ਲੈ ਲਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹੰਢਾ ਲਈ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਣ ਗਏ, ਸਭ
ट्रैवल भी कर लिया इधर उधर सारा सब चीज़ों के रूप में, पर जिंदगी का जिहड़ा चलन आ उहदे च कोई चढ़ती कला नहीं गई, उहदे च कोई जिन्हों कहा जाए कि बैटरमेंट वाली गल नहीं। डे बाई डे वो डाउनफॉल हो रहा, उहदे विच वकार वध रहे ने, उहदे च जिहड़ियां छोटियां छोटियां बैड डीड्स ने, वीकनेसिस, तुसी एंगर, ईगो, जैलस, लस्ट, ग्रीड, यू नेम इट, दे आर इनक्रीजिंग डे बाई डे। हुण की किया जाए? फिर लोगों का एक्चुअल लैवल तो जो बंदा इस तरीके ਨਾਲ सोचता, सपोज जो बीमार है बंदा, तो उन्होंने पता लग जाए मैं बीमार हाँ, तो वह फिर ट्रीटमेंट वास्ते भजदा आ। वो इधर एलोपैथी चो मिल जाए, जो एलोपैथी भी काम नहीं कर रही, तो फिर वो कुछ अल्टरनेटिव्स भी लभदा है, जिहदे विच अज की तारीख है तुसीं बहुत कुछ देखते हैगे हो। तुसीं नैचुरोपैथी देख रहे हो, तुसीं होम्योपैथी देख रहे हो, तुसीं होलिस्टिक अप्रोच देख रहे हो, डिफरेंट वे दी सब ये चीज़ां, एनर्जी हीलर आ रहे, बड़ा कुछ आ रहा है। सो सब चीज़ों के बाबत वो फिर भज नट करता है। इस सारे दे करके अज जो असीं वैसटर्नाइज वर्ल्ड में देखते हैं, तो ये फिर लोग मैਡੀਟੇਸ਼ਨ लर्न करने वास्ते होर इहो जिहियां चीज़ां फिर ईस्ट वाल नूं भज रहे हैं। वो ईस्ट दे विच इधर बौद्ध मत आ या फिर सनातनी धारा दे विचों कुछ चीज़ां जिहड़ियां ने उस लैवल ते पकड़ रहे हैं, उन्हां दे मगर भज रहे हैं। मगर इहदे नाल ही एक ऐसा तबका जिहड़ा बहुत ऑनेस्ट आ, ते जिहड़ा इस सारे नूं एक डिफरेंट वे नाल एनालिसिस करता, तो कई बार क्रिटिकल वे नाल भी बयान करता। वो कहते जी इन्ना ही ईस्ट विच वधिया सब कुछ, तो उन्होंने अपनी सोसाइटी का हाल वेखो जाके तुसीं। मतलब है साडे इन्हां मुल्कां दे विच जिहड़े असीं लोग चीज़ां खरीदते हैं, साजो समान खरीदते हैं, जिवें सपोज करो दुध आ, होर इहो जिहे प्रोडक्ट्स हैगे ने, इन्हां दे बाबत बच्चों का दुध, बच्चों के प्रोडक्ट्स, मैडिसिनस लै लो, इन्हां बारे पता लगे कि फेक मैडिसिनस आर एक्चुअली अवेलेबल इन मार्केट। बच्चों का जिहड़ा दुध आ या साडे पीण खाण वालियां चीज़ां दुध वगैरह ये फेक आ, डुप्लीकेट आ, ये अनएक्सैप्टेबल आ, ये बिल्कुल नॉन टॉलरेबल, बिल्कुल टॉलरेट ही नहीं किया जा सकता। अपने उस खिते चले जाओ तुसीं, उत्थे तुहानूं दवाइयां डुप्लीकेट पैर पैर ते मिल जाएगी। सब वड्डी मुश्किल ये होंदी है कि दवाई ओरिजिनल कित्थों मिले। हर चीज़ खाण पीण की पदार्थ है, हर चीज़ च मिलावट मिल रही, बुरी हालत है। मतलब है बंदे मनुख जिहड़े जिहड़े ये भी क्लेम करते कि सवेरे किसी धार्मिक स्थान ते चले गए, हर हफ्ते धार्मिक स्थान जा रहे हैं, हर रोज़ धार्मिक स्थानों ते जाके पहरा दे रहे, तो बेईमानी पूरी सिर तो पैर तक भरी पई। जिन्हों कह लो कि जिहड़ी ऑनेस्ट जिंदगी की अप्रोच है, ट्रुथफुलनेस है, इंटीग्रिटी है, वह ना मात्र नहीं हैगा इस सारे नूं, ते वो लोग देख भी नहीं पा रहे। इवन अज की हालत च मैं बात जे करा तो अज तो पिछे चले जाओ, जो इसका कॉन्सैप्ट ही नहीं सी, बंदे नूं लगता सीगा मैं तीरथ ते ना आया, इस तो वड्डा काम कोई नहीं गा। बस जिंदगी इंज कह लो परवान चढ़ गई। तो कला एक नहीं, एक वास्ते काशी नहाना बड़ा वड्डी गल होई सी, दूजे वास्ते हज जाना बड़ी वड्डी, हाजी हो गए, बस काम निबड़ गया। हुण ते पहुँच गए किते न किते। ये पहली बार गुरु नानक साहब की बाणी च तुहानूं बात मिलेगी। सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध, उस धुंध नूं गुरु बाबा जी ने उजागर करके लोगों को विखाया, तो उन्होंने मिटाया। वो दस्या कर की रहे हो। जपजी साहब शुरू ही इत्थों हुंदा आ, सोचा सोच ना हो वही जे सोची लखवार। इत्थे सोच का मतलब है सुचमता, शौचालय है। अपने आप को पवित्र साफ करना है, जे पाक साफ करना है, जे सैल्फ क्लींजिंग करनी है, कुछ सुधार करना है, तो बंदे कला पानी दे चुब्बे लाण नाल इस सब नाल नहीं होएगा। भुल जा इस चीज़ नूं। इत्थे ते क्या गया, सोच करे दिन रात, मन की मैल न तन ते जात। करी जा सोच रात दिन, मन की मैल तन धोतियां थोड़ा लै जाएगी। इत्थे बचन आया जल धोवै बहुत देह अनीत, सुध कहाँ होए काची भीत। कच्ची मिट्टी की कंध आ, पानी दियां बाल्टियां पा पा के धो रहा बंदा, वो तो गारा थोड़ा लै जाएगा, बल्कि होर उबलेगा, होर आएगा। तर्क दलील रैशनलाइज करके बात की थी गुरु नानक साहब कहते, जे मैं तीरथ नहावा जे तिस भावा, वो धरती के लोगों रब नूं रब रब कर दिओ, रब दियां गल्लां भगवान दियां गल्लां कर दिओ। एक पल ही सोचो तो सही, जेड़े अमलों दे विच
ਖੰਚਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਅਮਲ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗੇ ਵੀ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਤੇ ਬਾਤ ਟੁਕਾਈ, ਮੈਂ ਤੀਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕੋਈ ਨਫ਼ਰਤ, ਕੋਈ ਈਰਖਾ, ਕੋਈ ਦੁਆਖ ਜਾਂ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੈਕਟ ਖੜਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਲੇਵ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਮਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਾ ਮੈਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਿਸੇ ਜੰਗ 'ਚ ਪਿਆ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜੀ ਸਾਖੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੁਲਤਾਨ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੀਰੀ ਪੁਰ ਮੁਲਤਾਨ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੁਲਤਾਨ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਨਗਰੀ ਸੀ, ਤੇ ਸਾਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਰੇ ਲਾਏ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਜਗ੍ਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚੇ ਉੱਥੇ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਖੀ 'ਚ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਸੈਨ ਗੋਸ਼ਟ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਸਾਈਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਮੈਸੇਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ। ਮੈਸੇਜ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਭਰ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਹੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਅੱਗੋਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਾਤ ਇਹ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਰ ਨੇ, ਔਲੀਏ ਨੇ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਨੇ, ਦਾਨਿਸ਼ਮੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਵੇਖਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਜਦੋਂ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕਟੋਰਾ ਇਸ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਨਾ ਸਾਹਮਣੇ, ਤੇ ਉਹ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ 'ਚ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸੋਚਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਖੁਸ਼ਾਮਦੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ, ਕੋਈ ਖੈਰ ਮੁਕਦਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਪਰ ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਆਓ ਭਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਆ। ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਚਮੇਲੀ ਦਾ ਫੁੱਲ ਲਿਆ ਤੇ ਉਸ ਭਰੇ ਹੋਏ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਧ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀਗਾ ਫਕੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹ ਲੈ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਇਹ ਬਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਅਹਿਸਾਸ ਗਏ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕੋਈ ਕੌਤਕ ਹੈ, ਇਹ ਕੋਈ ਡੀਪ ਲੈਵਲ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਕੜ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਫਿਰ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੂੰ ਉਹ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਇਹ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰੋ ਪਲੀਜ਼, ਮੈਨੂੰ ਇਹਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਆਖਰਕਾਰ ਮੈਨੂੰ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰੋ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਕੀ, ਕੋਈ ਸੈਨ ਭਾਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੈਨ ਗੋਸ਼ਟ ਹੋਈ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਬਾਬਾ ਮੈਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ, ਮਰਦਾਨਿਆਂ ਜੋ ਬਾਤ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਲੋਕ ਕਿ ਮੁਲਤਾਨ ਨਾ ਜਾਇਓ, ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਪੀਰ ਫਕੀਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੁਨੇਹਾ ਭੇਜਿਆ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰੇ ਹੋਏ ਦੁੱਧ ਦੇ ਕਟੋਰੇ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਕਟੋਰਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਕਾ ਨਕ ਭਰਿਆ ਆ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਹੋਰ ਪਾਈ ਤੇ ਦੁੱਧ ਡੁੱਲੇਗਾ। ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਸ ਜਾਓ ਇੱਥੋਂ। ਠੀਕ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਸੇਜ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਿਹਾ? ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਘਬਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਮੁਫਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਬਲਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਦੁੱਧ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੇਲੀ ਦੇ ਦੋ ਰੂਪ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੋ ਉਹਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਇੱਕ ਤੇ ਖੁਸ਼ਬੂ ਦੀ ਇੰਤਹਾ, ਫ੍ਰੈਗਰੈਂਸ, ਦੂਸਰਾ ਇਤਨੀ ਹਲਕੀ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖ ਦਿਓ ਉਹਦਾ ਵਜਨ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਐਸਾ ਸਕੂਲ ਆਫ ਥਾਟ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨਾਏਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ਬੂ ਨਾਲ ਮਹਿਕ ਭਰ ਦੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਚੇਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜੇ ਇਹ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਕੋਈ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ, ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮਾਨਵਤਾ ਤੇ ਵਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਧਰਤੀ ਦਾ ਭਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣੇਗਾ ਜੋ ਵਾਕਿਆ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਤੁਰੇਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦਾ ਬੋਝ ਹਲਕਾ ਕਰੇਗਾ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤਕਲੀਫਾਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਐਕਟਿਵਿਜ਼ਮ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਦਮੀ ਹੈ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਧਰਤੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਆ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਕਾਇਨਾਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਆਪਣਾ ਚੰਗਾ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਪਾਉਣਾ ਆ। ਇਹ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ। ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਬਾਤ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਆਸਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਆਸਥਾ ਨਾਲ
कोई किसी किस्म का एतराज़ नहीं, पर मैं इतनी बात जरूर कहांगा, एक बारी शीशा जरूर वेखो। वट एवर यू आर फॉलोइंग, वट एवर यू आर डूइंग, ट्राई टू पे अटेंशन। डज दिस एक्टिविटी हैव एनी मीनिंग फॉर यू? डज दिस एक्टिविटी provide you any kind of spiritual comfort, any kind of spiritual outcome? Does this activity give you any kind of fruit? If not, then why are you wasting your energy, time, life? Be truthful with yourself at least. Integrity, सच्चार होना। बाबा जी दी बात आई क्या कि तीर्थ नावा जे तिस भावा विण पाने के नाए करी। नावा तीर्थां ते जाके, जावां धार्मिक श्राइन्स नूं विजिट करन वास्ते, ये सब चीज़ां होण, पर काहदे लई? जे उहनूं भाउंदा ही नहीं, जे उहनूं चंगा ही नहीं लगदा। ते होर तर्क ते आ जाओ। क्या रैशनलाइज करके चीज़ां बयान कीतियां। बयान कीता, परियै हथ पैर तन दे, पानी धोता उतर सखे, मूत पलीती कपड़ होए, दे साबुन लईयै ओ धोए, परियै मत पापां कै संग। ओ दुनिया दे लोको, पानी च चुब्बे ला के सिर्फ नहा नहा के अपने आप को सोच रहे हो बड़े पाक साफ हो गए। धुंध ये है, बंदे नूं लग रहा है आई एम वेरी रिलीजियस। वाई? बिकॉज आई एम डूइंग सम काइंड ऑफ religious bathing or visiting some religious shrine under the impression of some spiritual cleansing, getting some kind of spiritual cleansing. But indeed ਉਹਦੇ ਚ ਮਿਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਆ? ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਚਨ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਤੀਰਥ ਨਾਏ ਅਹੰਗ ਬੁੱਧ ਮੈਲ ਲਾਏ। ਇੱਕ ਤੇ ਅਲਾਮਤ ਸੀਗੀ, ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਇਹ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨਾਵਣ ਚੱਲੇ ਤੀਰਥੀ, ਮਨ ਖੋਟੇ ਤਨ ਚੋਰ। मतलब बंदा तुरिया ते नहाण ते धार्मिक स्थान के उत्ते कि मैं कुछ अपनी जिहड़ी है प्राप्ति करके आवांगा। साहब कहंदे मन की खोट सी, तन विच चोर सीगा, वकारां नाल लबरेज जीवन। इहदे उत्ते दानिशमंदां ने बचन कहे, असी आप चंगे नहीं सीगे, असी धार्मिक स्थान भी चंगे ना छड्डे। साडी अंदर दी बुराई धर्म ते धार्मिक संस्थावां विच भी फैल गई, हालत बन गई। अज भी कोई शीशा नहीं वेख रहा। गुरु नानक साहब ने धुंध मिटाई, वो एक्चुअल लैवल ते इस चीज नूं साफ गोई नाल बयान किया। नावण चले तीर्थी, मन खोटे तन चोर, एक पा उतर सनात्या, दुई पा चढ़ी उस होर। क्या पता नहीं एक उतरिया कि नहीं उतरिया, कोई पाप गुनाह कोई माड़ी चीज? हाँ, दुई पा, बल्कि होर दो चीज़ां वध गईयां। वकार ते जिहड़े सीगे, सैकंड चीज जिहड़ी वध गई अहंकार। ਉਹਦੀ ਆਮਦ ਹੋਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ 'ਚ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਭ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ, ਪਾਪ ਕਰੇ ਪੰਚਾਂ ਕੇ ਬਸਰੇ, ਤੀਰਥ ਨਹਾਏ ਕਹੈ ਸਭ ਉਤਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਧੁੰਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧਰਤੀ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਚਾਰ ਚੁਫੇਰੇ। ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੁਰੂਖੇਤ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਹਰਿਦੁਆਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਗਨਨਾਥਪੁਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਈਵਨ ਮੱਕੇ ਮਦੀਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਹੋ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਆ ਧਰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਧਰਮ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ? ਧਰਮ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ, ਏਕੋ ਧਰਮ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ, ਗੁਰਮਤਿ ਪੂਰਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਸੋਈ। ਧਰਤੀ ਦੇ ਲੋਕੋ ਇੱਕ ਧਰਮ ਹੈ, ਉਹ ਹੈ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸੱਚ ਕੋਈ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੱਚ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੇ, ਸਚਿਆਰ ਹੋ ਜਾਏ। आद सच जुगाद सच है भी सच, नानक उसी भी सच। इस सच च लबरेज हो जाए, रियलिटी च जिए, असलीयत च आ जाए, अपने गुनाह गलतियां जो चीज आ उन्होंने साफ गोई नाल मन्ने। ये बचन असीं पढ़ते हैं गुरबाणी दे विच। जिदन बंदा एहसास करेगा ना मैनू तो कुछ भी नहीं पता, सिख उदन ही होएगा ना, दैट टाइम वन कैन be a seeker, one can be a learner. That is the actually real definition of Sikh, and that starts from here as Guru Arjan Sahib is presenting. Gyan dhyan kich karm na jana, na gyan hai na dhyan, na koi dharm da karm karna hunda hai, par
बंदा जो ये हंकार कहता नो 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 आई नो एवरीथिंग, मैनू कुछ होर सीख करन दी लोड़ नहीं, कुछ होर सीखण दी लोड़ लभण दी लोड़ नहीं। समझो एक ऐसी हालत, एक ऐसा कल्ट बन गया, ये बर्बादी तबाही तो बिना कुछ भी नहीं। फिर ये धुंध है, काला नेरा नहीं गा, चिट्टा नेरा है, ऐसा नेरा आया जिहदे चों निकलिया नहीं जा सकता। सतगुरु नानक प्रगटिया, गुरु नानक दा स्कूल ऑफ थॉट इहदे च प्रगट होया। मिटी धुंध, जग चानन होवा, धुंध मिट गई, रोशनी आई। तीरथ, हाँ तीरथ की परिभाषा बदली। बाबा नानक जी के बचन, तीर्थ नावण जाऊं, तीर्थ नाम है, तीर्थ शब्द विचार अंतर ज्ञान है, गुर ज्ञान साचा थान तीर्थ, 10 पूर्व सदा दसाहरा, नवा तीर्थ बनया। एक ऐसा तीर्थ जिहदे च समझ आई सच तां पर जानिए जां आत्म तीर्थ करे निवास। वो बंदे बाहर दियां इमारतां ते पानी दे कंढे तीर्थ, तीर दे सोमे जिहड़े ने कल्ले इन्हां नाल नहीं। आत्म तीर्थ अपने आप नूं बदलना है, अपने आप ते एम्फेसाइज करना है, फोकस करना है। जिन्नी एनर्जी है आत्म सुधार दी है ते इहदे लई मददगार, हाँ फिर भाई गुरदास जी की रचना, सतगुरु नानक प्रगटिया मिटी धुंध जग चानन होवा, ज्योंकर सूरज निकलिया तारे छपे अंधेर पलोवा। सूरज की आमद दे नाल तारे छिप जाते हैं, तारे छिप जाते हैं। देखो सूरज जिहड़ा आ तारियां नूं खा नहीं जाता, मुका नहीं देता, बल्कि सूरज की रोशनी ही इतनी बुलंद हो जाती है, उस रोशनी च तारियां की रोशनी मर्ज कर जाती है। गुरु बाबा जी ने जिहड़ी मजहबी कन्वर्जन सीगी भी इस धर्म नूं नहीं मनदे ते इहनूं मन लो, इहनूं नहीं मनदे ते इहनूं मन लो, ये सारी चीज़ नूं चुक दिता। भाई मरदाना सरीखा शख्सियत उन्हां दे नाल ता उमर रही, जिहड़े आप नमाजी सीगे कहंदे उस रूप दे विच। गुरु बाबा जी आप जदों नवाब दौलत खान नूं बाबा जी बयान करते हैं कि ना हम हिंदू ना मुसलमान, तो वह कहंदा जी फिर गल ये है मसीते चल के नमाज पढ़ो मेरे नाल। बाबा जी तुर गए, साखियां असीं कई बारी सुनिया, इसे हाजरी च मैं बयान कर रहा सी। बाबा जी नूं कोई इतराज नहीं। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी जिस हुंदा धन धन ओ राम बेन बाजे, मधुर मधुर तुन अनहद गाजे। इत्थे किते बेन वज रही है, किते बंसरियां वज रही ने। यही जगह आ जिथे गुरु ग्रंथ साहब की बाणी दे विच उठ फरीदा उजू साज सुबह निवाज गुजार, इत्थे मसीत की अजान गूंज रही है, किते ये चीज़ां हो रही ने। तो फिर भी क्या, ये गुरबाणी का संदेश आ। मुसलमान कहावन मुश्किल जा होए तो मुसलमान कहावे, बनो मुसलमान, पर आहो जो मुसलमान बनो। इत्थे मसीत की गल है, इत्थे हर चीज़ को गुरु साहब ने नवे रूप में डिफाइन किया। हुण सारी बात की है, वो तारे छपे, जिहड़े तारे रात के हनेरे दे तरफ दिसते ने, रोशनी तो लगती उन्होंने, पर इन्नी दूर होंदी है कि राहियां नूं राह नहीं मिलते। रस्ते च पे हुए ठोकरां खारे लोग, वो कंकर पत्थर कंडे वो नहीं दिसते। मजहब वही है, धर्म वही है जिहड़ा बंदे नूं रोशन दिमाग करे, जिहड़ा उहदी अकल की दरियाफ्तगी करे, उहदी सोझी लैके आवे। असीं बचन पढ़ते हैं, ये देखो गुरु महाराज जी ने क्या तरीके नाल चीज़ां दसियां समझाइयां। क्या अकली साहिब सेवीए, अकली पाइए मान, अकली पढ़कै बूझिए, अकली कीचै दान, नानक आखै राह ए होर गल्लां शैतान। जिहड़ी शैतान की गल है, ये कोई ये नहीं कि किसी एक जगह तो कोई शैतान नूं पत्थर मारन चला गया तो शैतान, ना ना ना। बाबा जी कहंदे जो मनुख अकल तो टुट गया वह शैतान बन गया। तो कला ही नहीं, जिहड़ा बंदा तुहानूं अकल तो तोड़ रहा वही शैतान है सब तो वड्डा। अकल की सोझी बंदे च होनी बड़ी जरूरी है। अकलां बाजों खूह खाली असीं कहने आ। जिथे बंदे कोल सुरत नहीं, दिमाग नहीं, सोझी नहीं, वो बंदा इलिटरेट हो जाएगा। तो इलिटरेट बंदा पशु दे नमेंदे आ। हुण जिहड़ी बड़े तार्किक वे नाल बात बाबा नानक जी ने की, मैं एक दूजे साखी रूप में वेरवा देवां। हरद्वार की साखी असीं पढ़दे आ, पानी चढ़ते नूं दे रहे अंजलियां भर भर के, बाबा जी लहिंदे नूं, मतलब वो पूरब नूं, बाबा जी पच्छम नूं, उधर नूं पानी दे रहे इस तरीके नाल। वो किसी ने सोचा ये परदेसी बंदा, इनू पता नहीं गा, तो उन्होंने क्या वो नहीं नहीं नहीं, नहीं तू
गलत पासे मूँह किया, इधर नहीं, पानी इधर नूं जा करके देना आ। तो बाबा जी उसनूं जिहड़ा टोकण वास्ते आया, या आले दुआले जिहड़े लोग इकट्ठे होकर देखते, हो कहिंदे भी इधर नूं क्यों देना? वो कहिंदे लै तैनूं सारी गल दसनी पेगी, इधर नूं इस करके देना आ क्योंकि ये पानी सूरज नूं देना है, तो सूरज के जरिए पितरदेश जाएगा, इस रूप में होएगी बात। बाबा जी कहिंदे फिर ठीक है, फिर मैं ठीक दे रहा हूँ। वो कहिंदे हद हो गई, तैनूं गल समझाई, तैनूं फिर भी नहीं समझ लगी, तू चढ़दे नूं दे पानी, लैंदे नूं क्यों दे रहा? बाबा जी कहते इस करके क्योंकि मैं पितरदेश नहीं पानी पहुँचाना। नो नो हू केयर, मैनू उत्थे कोई पहुँचाने की इंटरस्ट नहीं हैगा, बल्कि मेरा तो इत्थों पिंड आ कुछ 100 कोहां की दूरी के उत्ते ननकाना साहब तलवंडी, तो मैं उत्थे तलवंडी मेरी फसल कुछ बीजी है, तो मैनू लग रहा है उत्थे काफ़ी समय तो मीह नहीं पिया, तो पानी खूब है, मैं कोई 4 जिहड़ा हैगा पानी दियाँ बुक्कां छिड़क देना, कुछ स्क्वेयर मीटर एरिया एटलीस्ट उन्होंने पानी मिल जाएगा। सारे हस पे, इनू कोई समझाओ, वो पानी उत्ते नहीं पहुँचना, वो पानी एवें नहीं पहुँचता हुंदा, इस तरह नहीं हुंदा, तू भुलेखे च है। बाबा जी कहते इसे गल नूं आप सोच के वेखो की कर रहे हो। इहो जे रिचुअल्स करके फेक एक अपने आप नूं तसल्ली दे रहे हो, कुछ नहीं होएगा। ये गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च ने क्या, जीवत पितर ना मानै को, मोए सराध कराई। जिउंदे पितर रुलदे फिरदे, बजुर्गों की इज्जत नहीं, सन्मान नहीं, सत्कार नहीं, संभाल नहीं। उस खिते जिथे अज भी तुसी देखो जाके हालत की है। छोटा जिहा वेरवा देना, मेरे शहर दे विच वृद्धाश्रम बनया एक, क्योंकि मिट्टी धुंध जग चानन होवा, जोकर सूरज निकलिया। बाबे की आमद एक सूरज की आमद है, एक ऐसी रोशनी है जिन्हें दुनिया के बिलीव सिस्टम नूं जिहड़ा बिल्कुल शैटर्ड सीगा, उन्हें एक सॉलिड लैवल ते एक नवे बादलील ते तर्क के रूप में लियांदा, ताकि धरती के लोगों तुसी रोशन दिमाग हो सको, तुसी जिंदगी दे असल रंग नूं मान सको। जिहड़ी मैं बात कर रहा, वृद्धाश्रम बनया, बड़े स्कॉलर लोग, बड़े सोसाइटी के चंगे लोग वो आए, उन्होंने स्पीचेस कीतियां, मैं भी उत्थे मौजूद सीगा। तो जो स्पीचेस कर रहे ने, वो कह रहे हैं वाह वाह आ जिहड़ा वृद्धाश्रम बनया बड़े चंगे लोगों की देन है, असीं मुबारकबाद दिंदे आ शहर वासियों नूं, फलानो फलानो। साडे एक बड़े स्कॉलर प्रोफैसर सीगे, उन्होंने बोलण का मौका बनया, तो कहिंदे भी गल है, मैं काफ़ी देर दा सुन रहा, तो कहा जा रहा है कि ये जिहड़ा बनया हैगा आ वृद्धाश्रम है, बड़े चंगे लोगों की देन है, बड़ी वधिया गल है, बड़ी इस रूप में। कहते सारा कुछ सुनदे सुन रीने कन मेरे कन्नां चों खून निकल रहा। असल विच कोई चंगे लोगों की देन नहीं, भुल जाओ, ये माड़ी औलाद की देन है, जिहड़ी औलाद अपने बजुर्गों अपने मापियां नहीं संभाल सकती। इहो जिहा समाज जिहड़ा एक अदृष्ट रब नूं लभ रहा है, दिसदे रब नूं तिरस्कार कर रहा है। ये है वो रोशनी, धर्म ते है, पर किसी नूं राह नहीं विखा रहा। नो वे, पीपल आर स्टिल एक्चुअली getting some kind of, you can say, confusion and illiteration, and they are just actually stuck in their own mindset. That is why Gurudas ji saying कि ज्योंकर सूरज निकलिया। गुरु बाबा जी ने नहीं कि मजहबां नूं क्रिटिसाइज किया, फलाणे नूं खंडित किया, फलाणे नूं तोड़िया, फलाणे नूं, नो नो नो। गुरबाणी का कॉन्सैप्ट क्रिस्टल क्लीयर आ। बाबा जी अपना पाथ इतनी रोशनी नाल विखाउंदे, जे कोई एक बारी गुरु नानक साहब की बाणी दे विचों मैं कहना करी सुरत अपनी गुजार लवे और रोशन दिमाग ना हो, ऐसा कभी हो नहीं सकता। सो बाबा जी ने बात जी पाई, भाई गुरदास जी कहिंदे कि ज्योंकर सूरज निकले तारे छपे अंधेर पलोवा, सिंह बुके मृगावली पन्नी जाए ना तीर्थ रोवा। ये बात अगे तोरांगे। सिंह दा बुकना ते मिर्गां दियां डारां, हरनां दियां डारां नूं तीरज ना बज सकना, ओदी दहाड़ दे सामने। असी शब्द पढ़ते हैं, गुर शब्दी गोबिंद गज्जिया। हे गोबिंद दा गजना गुर शब्द दे, गुरु नानक दी आमद शब्द दी आमद आ। इस शब्द की आमद की बात सोमवार पावांगे 30 नवंबर नूं। आप समूह नूं मेरे वालों अगाओं गुरपुरब की बहुत सारी दिली मुबारकबाद। आउंदे कल तो अखंड जाप प्रारंभ होणगे, गुरुद्वारा साहब तो लाइव टैलीकास्ट होएगा। सोमवार वाले दिन भोग पैणगे, उहदे
ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਰਤਨ ਹੋਏਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਖਾਕਸਾਰ ਆਪਣੀ ਜਿਵੇਂ ਸਲੋਟ ਬਣ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਤੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀਆਂ ਰਿਸ਼ਮਾਂ। ਯਕੀਨ ਜਾਣੋ, ਨੋਟ ਸਟੋਰੀ ਟੈਲਰ ਲਾਈਕ ਦੈਟ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਨਾਲ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੋਏ, ਆਈ ਟਰਾਈ ਮਾਈ ਬੈਸਟ। ਸੋ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ, ਐਗਜ਼ੈਕਟਲੀ ਜੀਵਨ ਗਾਥਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸੁਣਾਵਾਂਗੇ ਉਸ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਜਿਵੇਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਰਚਨਾ ਦੀ ਬਾਤ ਪਾਈ ਹੈ, ਇਸ ਬਾਤ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮੇਰਾ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਸਮਾਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਵੀਰ ਜੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਉਹ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਿਹਾਲ ਕਰਨਗੇ। ਮੈਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।